strength. Okay, of the same concrete, if we cast the cube and if we cast the cylinders. Okay, so the Q, the what is the correlation between the strength found out with the help of the cube and the strength found out with the help of the cylinder? What happens when we find the compressive strength in the compression testing machine as has been shown here? What we do, we put this cube which is of 15 centimeter by 15 centimeter by 15 centimeter into the two jaws or two plates. This is the top plate and this is the bottom plate. When we put this cube, and also we put the cylinder also for testing the compressive strength, then what actually happens? The surfaces of the cube, the faces of the cube which are very adjacent to these two plates, they get the load from either the bottom plate or from the top plate. The cube is being compressed. The load is transferred to the middle portion of the cube. But while transferring the load, the surface area of the cube which is very adjacent to these plates, it actually resists the applied load in two ways. Okay, I will repeat this sentence. The surface area, that is this top surface and bottom surface of this cube, resist the load applied, that is the compressive load applied, in two ways. First is resistance by shear strength, very near to surface, the resistance by shear is more. And the second is resistance by compression, resistance to compression. Okay, due to the friction between the particles of the concrete, the resistance by shear is more at these two plates or at the two plates of the concrete surfaces, that is this surface and this surface. And as we move away from this surface, that is this top surface or bottom surface, toward the center part of the cube, the shear stress goes on reducing and only compressive stress acts. Okay, or only compressive force acts at the surface, at these two surfaces, due to the resistance of the plate with the concrete cube. The two stresses opposes the failure, that is the shear stress and the compressive stress. But as we move away towards the central part of this cube, only compressive force remains. But in the cube of the aspect ratio 1, again please remember aspect ratio, it is the ratio of the length divided by the depth or breadth divided by depth. For concrete, that aspect ratio is 1, that is 15 by 15. Okay, so what happens in concrete cubes, that being this shear strength more in addition to compressive strength, the load required to crush the concrete cube is more as compared to the cylindrical cube. Now what happens in the cylindrical mold? At the two surfaces of this mold, there is definitely shear stress or shear resistance due to the friction between the plate and the concrete top surface. Just understand the mechanism. It has been asked in exam that what is the correlation between cube and the cylindrical strength. The correlation is very simple, that the strength found out with the help of the cube is 1.25 times more than the cylindrical strength. Okay, इन शॉर्ट ये इसका निचोड़ क्या है मैं आपको बता देता हूं पहले, कि क्यूब से जो कंक्रीट की हम स्ट्रेंथ निकालते हैं
वही कंक्रीट की स्ट्रेंथ यदि हमने सिलेंडर से निकाली तो क्यूब की स्ट्रेंथ ये 1.25 टाइम्स सिलेंडर से निकाले हुए स्ट्रेंथ से ज्यादा आती है, एक ही कंक्रीट की। लेकिन क्यों ज्यादा आती है उसका हम रीजन जानने का ट्राई कर रहे हैं। क्यूब में क्या होता है वो बताया मैंने आपको, ये कि ये टॉप और बॉटम सरफेस जो है ये प्लेट के साथ रहता है, प्लेट को चिपक के रहता है, तो इसलिए दोनों में फ्रिक्शन रहता है। और ड्यू टू दैट फ्रिक्शन द शियर स्ट्रेंथ इज मोर एट द टॉप एंड द बॉटम सरफेस। शियर स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, उसके कारण कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ दोनों कंक्रीट को फोड़ने से अपोज करती है। तो इसलिए ज्यादा हमें ताकत लगती है ये कंक्रीट को फोड़ने के लिए क्यूब में, क्योंकि इसका एस्पेक्ट रेशियो जो है वो 1 है, क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी डेप्थ जो है वो 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो इसलिए ये जब ये जैसा लोड अंदर अंदर ट्रांसफर होता है कॉम्प्रेसिव लोड, तो उतना शियर धीरे धीरे कम होता है, लेकिन जीरो नहीं होता। तो यहाँ कहीं तो भी बीच में एट 7.5 सेंटीमीटर्स both some lessened shear strength as well as the compressive strength acts, and therefore more load is needed to crush the cube। लेकिन सिलेंडर में ऐसा नहीं होता। सिलेंडर में क्या होता है, क्योंकि इसका एस्पेक्ट रेशियो 2 रहता है, क्योंकि इसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर रहता है और डेप्थ 30 सेंटीमीटर रहती है, या डायमीटर 10 सेंटीमीटर रहता है तो डेप्थ 20 सेंटीमीटर रहती है। तो डेप्थ डिवाइडेड बाय डायमीटर और द डेप्थ डिवाइडेड बाय द, ये इसमें यदि हम लेंगे तो डेप्थ डिवाइडेड बाय विड्थ इज 1, बट हियर इट इज 2। द डेप्थ इज 30 एंड द विड्थ इज और द डायमीटर इज 15, सो 30 डिवाइडेड बाय 15 इज 2। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी ये जो टॉप सरफेस है और बॉटम सरफेस है, यहाँ पे ये जो कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन से लोड हम अप्लाई करते हैं तो एट दिस टू सरफेसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट एंड द कंक्रीट सरफेस, दोनों में फ्रिक्शन होने के कारण यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कंक्रीट का फेल्यूर अगेंस्ट कॉम्प्रेशन एंड द शियर स्ट्रेंथ दैट इज फेल्यूर अगेंस्ट द शियर, ये दोनों एक्ट होता है। कब तक एक्ट होता है? जब तक इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर तक के डेप्थ में हम जाते हैं तब तक के, ठीक है, या ऑलमोस्ट 0.87 टाइम्स द डायमीटर। नीचे से भी वैसा, तो बीच में का जो पोर्शन है 0.26 डायमीटर, ये जो पार्ट है, ये पार्ट में सिर्फ कॉम्प्रेसिव लोड एक्ट होता है, यानी ये पार्ट में कंक्रीट की सिर्फ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बचाती है ये कंक्रीट को फोड़ने से, तो कम हो जाता है। ये ऊपर के पार्ट में शियर और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है तो ज्यादा लगता है लोड, लेकिन यहाँ पे ये कम होता है, तो इसलिए इसके फेल्यूर के लिए थोड़ा कॉम्प्रेसिव लोड हमें कम लगता है एज कंपेयर टू द क्यूब विच इज एज कंपेयर टू द कंक्रीट क्यूब कास्टेड। ओके, दिस इज द fundamental you should be able to write down in exam, that the restraining effect by these two plates, the platons बोलेंगे हम उसको, plates of the testing machine extends over the entire height of the cube but leaves a part of the, but cylinder में क्या होता है, but leaves a part of the cylinder unaffected due to the increase in aspect ratio। ये जो बीच में का पोर्शन है यहाँ पे ये प्लेट का कारण जो शियर है रेजिस्टेंस वो नहीं होता है, तो इसलिए ये जो सिलेंडर है तो सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ इज लेस देन दिस क्यूबिकल स्ट्रेंथ बाय 0.87 टाइम्स और द क्यूब स्ट्रेंथ इज 1.25 टाइम्स मोर देन द सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, द एवरेज वैल्यू ऑफ सिलेंडर टू क्यूब स्ट्रेंथ रेशियो, ओके, द रेशियो ऑफ द सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ एंड द क्यूब स्ट्रेंथ, इनका यदि हमने रेशियो लिया, लेकिन एक ही कंक्रीट का, यानी एक ही साइड पे एक ही जगह से जहां कंक्रीटिंग अभी हो रहा है वहां से यदि हम सिलेंडर भी कास्ट करते हैं और क्यूब भी कास्ट करते हैं और उसको 28 दिन क्यूरिंग करने के बाद में यदि उसकी स्ट्रेंथ हम देखते हैं, तो दोनों के स्ट्रेंथ, क्योंकि एक ही कंक्रीट है तो हम क्या सोच सकते हैं कि दोनों की स्ट्रेंथ सरीखी आना चाहिए, लेकिन
दोनों के स्ट्रेंथ में फर्क आता है थोड़ा सा। कितना आता है? रेशियो यदि लेते हैं तो सिलिंडर टू क्यूब स्ट्रेंथ रेशियो इज 0.87, मींस सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ इज 0.87 times the cube strength, or the cube strength is approximately 1.25 times the cylindrical strength. I think all of you have understood the fundamental of the correlation between the cylindrical strength and the cube strength. It is asked in exam. Also from general knowledge point of view also, you must know all these things. It will be useful to you in your future also. Okay, I have told you the failure mode of the concrete. Okay, as has been shown here, this is the failed or the cracked cube. compression टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करने के बाद में ऐसा दिखता है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वी विल बी रिपीट। वाटर सीमेंट रेशियो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीमेंट, दैट इज द विच टाइप ऑफ द सीमेंट, 33, 43, 53 ग्रेड सीमेंट है क्या, या ओपीसी है, पीपीसी है, जीजीबीएस है, सल्फेट रेजिस्टेंस है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, उससे भी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोपोर्शंस ऑफ द एग्रीगेट, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, क्यूरिंग एंड द टेम्परेचर क्यूरिंग, एज एट द टेस्टिंग, यानी 7 डेज के बाद में टेस्टिंग कर रहे हैं, 28 डेज के बाद में कर रहे हैं, कि 2 महीने के बाद में कर रहे हैं। जैसे जैसे एज कंक्रीट की बढ़ती जाएगी वैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। एंड कंडीशन ऑफ द टेस्ट, that is whether the test is being carried out in which atmospheric temperature etc condition. Okay, now we have seen the aspect ratio concept. So that aspect ratio is height to diameter for the cylindrical cube. Okay, the aspect ratio is height to diameter, and the correlation between the cylindrical cube and the cylindrical mold or cylindrical molded concrete and the cubical molded concrete, उसमें करेक्शन फैक्टर क्या है उसका एक ग्राफ है हमारे पास में। ठीक है, ये ग्राफ का यूज करके यदि ये हाइट टू डायमीटर रेशियो, जैसे समझो डायमीटर जो है वो 15 सेंटीमीटर है और हाइट 30 सेंटीमीटर है, तो वो रेशियो है 2। ठीक है, सो हाइट टू डायमीटर रेशियो जिसको एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। तो हमने यदि सिलेंडर से कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकाला, इफ वी फाउंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विद द हेल्प ऑफ द सिलेंडर, देन दैट स्ट्रेंथ नीड्स टू बी अप्लाइड विद सर्टेन करेक्शन फैक्टर टू फाइंड आउट द क्यूबिकल स्ट्रेंथ। वही कंक्रीट की क्यूब स्ट्रेंथ कितनी आएगी वो पता करने के लिए जो सिलिंड्रिक से जो स्ट्रेंथ निकालना है उससे हमें कोई करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसका ये ग्राफ है। ये ग्राफ इंडियन स्टैंडर्ड 456 में दिया है, 516 में भी दिया है। इन शॉर्ट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि करेक्शन फैक्टर फॉर द सिलिंड्रिकल मोल्ड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वो कितनी है। जैसे एस्पेक्ट रेशियो 2 है, यानी हाइट टू डायमीटर रेशियो 2 है, तो करेक्शन फैक्टर 1 है, यानी इससे जो स्ट्रेंथ आएगी वो उसको हम वो दैट इज द करेक्ट स्ट्रेंथ, दैट इज द स्ट्रेंथ वी विल गेट द एग्जैक्टली और वी विल मल्टीप्लाई बाय 1। लेकिन इससे जैसा एस्पेक्ट रेशियो कम होते जाता है, जैसे इसका 1.8 है, इसका मतलब क्या है कि हाइट कम हो गई है और डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा है, तो रेशियो कम हो गया, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर समवेयर 965 वगैरह आएगा। ठीक है, सो दिस ग्राफ depicts or gives the correction factor for the height to diameter ratio of a cylindrical mold or cylindrical core। यानी एखादी बार हम क्या करते हैं, कंक्रीट का कोर जो कास्टेड कंक्रीट है उसमें से बोरिंग करके या कोरिंग करके निकालते हैं, तो उसकी जो स्ट्रेंथ हमें पता करना है, उसके लिए ग्राफ है। इन शॉर्ट ये आपने ध्यान में रखना है। द प्रोडक्शन ऑफ दिस करेक्शन फैक्टर and the measured compressive strength is known as the corrected compressive strength, this being the equivalent strength of the cylinder having height to diameter ratio of the two। the equivalent cube strength, लेकिन इसकी cube strength निकालना है तो उससे क्या करना पड़ेगा, हमें उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक थोड़ा प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि आप जब किसी साइट के ऊपर में कंक्रीट के क्यूब कास्ट करते हैं
कंक्रीट के सिलेंडर कास्ट करते हैं। आपके साइट के ऊपर में कंक्रीटिंग चालू है और वो साइट के ऊपर में कंक्रीट के क्यूब कास्ट करते हैं, सिलेंडर कास्ट करते हैं। हर सेट में कितने क्यूब कास्ट करते हैं? मैंने बताया हर सेट, एवरी सेट ऑफ द कंक्रीट क्यूब और कंक्रीट सिलिंड्रिकल मोल्ड कंसिस्ट ऑफ 3 क्यूब्स। ठीक है, 3 क्यूब हर सेट। यानी जब एखादे दिन किसी कंक्रीट का टेस्टिंग हमें करना है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, तो वो कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंक्रीट के क्यूब सेट कास्ट करते हैं, क्यूब सेट बनाते हैं। लेकिन एक सेट में कितने कंक्रीट के क्यूब रहेंगे? 3 रहेंगे। एक सेट में कितने कंक्रीट के सिलिंड्रिकल मोल्ड रहेंगे? 3 रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने कास्ट कर दिए। और ये इसका टेस्टिंग तो कोई साइट पे नहीं होता, इसका टेस्टिंग लेबोरेटरी में होता है, या हमारे साइट पे भी कहीं कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन है तो वहां पे हम टेस्टिंग करते हैं। लेकिन कितने दिन के बाद में करते हैं? 7 दिन के बाद में करते हैं या 28 दिन के बाद में करते हैं। तो वो 7 डेज और 28 डेज हमें क्यूरिंग टैंक में उसको रखना पड़ता है। तो हर रोज के लिए अलग अलग क्यूरिंग टैंक रहेगा क्या हमारे पास में? बिल्कुल नहीं रहेगा। बहुत बड़ा क्यूरिंग टैंक रहता है और वो क्यूरिंग टैंक में हम रोज के क्यूब कास्ट करके उसका क्यूरिंग करते हैं और 7 दिन के बाद में या 28 दिन के बाद में उसका टेस्टिंग करते हैं। तो अब पहचानेंगे कैसे हम टेस्टिंग को निकालते वक्त कौन से डेट का क्यूब है, बराबर है 28 दिन हुए कि नहीं हुए, ये कौन से लोकेशन का है ना? बिकॉज दैट कॉन्क्रीट क्यूब सेट represents the strength of the concrete which has been done by you at the site. So what to do then? So therefore we have to mark that concrete cube either with the help of the paint, वो कंक्रीट क्यूब के ऊपर में उसका कुछ तो भी आइडेंटिफिकेशन करना है हमें। तो क्या करेंगे हम उसके लिए कि कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क हम क्या करते हैं, पेंट से लिखते हैं उसके ऊपर में ना। पेंट पानी में क्यूरिंग करते वक्त बहुत कम निकलता है, या एखादा बारीक जो तार रहता है विद द हेल्प ऑफ ए वेरी फाइन वायर और ए नेल, उस वो कंक्रीट क्यूब के ऊपर में हम लिखते हैं। वहां पे क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क, उसमें डेट ऑफ द टेस्टिंग यानी डेट ऑफ कास्टिंग भी डालते हैं। जैसे आज की तारीख है समझो तो 24 अगस्त 24 2020 या 24/8/20, और इसके 28 दिन के बाद में कौन सी डेट आएगी वो डेट ऑफ टेस्ट डालेंगे या कास्टिंग तो जरूर डालेंगे। एज ऑफ द स्पेसिमन, ये हम ये रिपोर्ट जब बनाएंगे टेस्ट का तो तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वो उसके ऊपर में हम क्या डालेंगे, कास्टिंग की डेट, उसके ऊपर में ग्रेड ऑफ द कंक्रीट डालेंगे, कौन से ग्रेड का कंक्रीट है, M15 है कि M20 है कि क्या है। 3 चीजें हमारे वो क्यूब के ऊपर बहुत जरूरी है, एक ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, दूसरा डेट ऑफ द कास्टिंग, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन। कंक्रीट एखादे रोड का है तो रोड में कौन से पार्ट को बताता है, एखादे बीम का है तो बीम बिल्डिंग की कौन से ग्राउंड फ्लोर की बीम है कि फर्स्ट फ्लोर की है कि और कहीं की बीम है, वो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है। अभी ये जब हम लेबोरेटरी में टेस्टिंग करते हैं तो लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद में उसका रिपोर्ट हमारे जैसा ही सिविल इंजीनियर बनाता है। वो भी रिपोर्ट में क्या लिखेगा फिर कि भाई उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क कौन कौन से थे, यानी वो डेट ऑफ कास्टिंग, पोजीशन, लोकेशन वगैरह सब देगा। फिर वो उसके रिपोर्ट में डेट ऑफ टेस्टिंग, एज ऑफ द स्पेसिमन, 7 दिन का टेस्ट हुआ कि 28 डेज का टेस्टिंग है, क्यूरिंग कंडीशन यानी कोल्ड वाटर क्यूरिंग है कि स्टीम क्यूरिंग है, वो वेट ऑफ द स्पेसिमन लेगा, तीनों क्यूब के वेट लेगा। ठीक है, इससे हमें डेंसिटी मिलती है। आपको मैंने बताया कंक्रीट की डेंसिटी कितनी रहती है, आप नोटबुक में लिख डालिए 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कंक्रीट की डेंसिटी रहती है। ओके, तो वो डेंसिटी, वो वेट ऑफ द स्पेसिमन से हमें कंक्रीट की डेंसिटी आई क्या तो पता चलता है। डायमेंशंस ऑफ द स्पेसिमन यानी वो क्यूबिकल है कि सिलिंड्रिकल है, उसके 15 सेंटीमीटर का क्यूब है या 15 सेंटीमीटर डाया का स्पेसिमन है। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी वो 15 x 15 का होगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। मैक्सिमम लोड
एट फेल्यूर, जब लोड पे फेल होता है तब कंक्रीट को क्रैक आते हैं वो क्यूब को, तो उसका लोड, उसको एरिया से डिवाइड किया था कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, और अपीयरेंस ऑफ द फ्रैक्चर्ड फेसेस ऑफ द कंक्रीट एंड टाइप ऑफ द फ्रैक्चर, ये वो रिपोर्ट में मेंशन करेगा। ठीक है, सुनाई दे रहा है ना गौरव मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हाँ यस सर। है ना। हाँ, थैंक यू थैंक यू। क्योंकि आज थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क का और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो बीच में से प्रॉब्लम आ सकता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में हम जा रहे हैं मित्रों, इसको एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेस्ट करके कहते हैं। ठीक है, वी नो, you all know, we have seen earlier the maturity of concrete etc concept, or we have also seen that concrete needs curing. The cause of the curing, you know. Now it has also been found, I have already explained you, that there is a correlation between the temperature of the concrete and the rate of gain of the strength of the concrete. ठीक है, यानी ऐसा हमने देखा है इसके पहले कि कंक्रीट का तापमान, कंक्रीट का टेम्परेचर और उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ गेन करने की या वो स्ट्रेंथ मिलाने की जो गति है, जो स्पीड है, इसमें रिलेशन है। यानी क्या कहने का मतलब, यदि कंक्रीट को हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंक्रीट, द रेट ऑफ द गेन ऑफ द स्ट्रेंथ इज मोर। यानी यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जिसको हमने बाद में स्टीम क्यूरिंग करके बोला, कि यदि क्यूरिंग हम ठंडे पानी से ना करते हुए स्टीम से करते हैं, वाप से क्यूरिंग करते हैं, वेपर से करते हैं, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ जल्दी मिलती है हमें। यदि 28 दिन ठंडे पानी से क्यूरिंग करने के बाद में जो स्ट्रेंथ मिलती है, वो यदि हम कंक्रीट को वाप से क्यूरिंग करते हैं, वेपर से करते हैं, या वो कंक्रीट को बॉइलिंग वाटर में रखते हैं, है ना, ये क्यूब को रख सकते हैं हम, तो हमें उसकी स्ट्रेंथ जल्दी मिलती है। तो ये प्रॉपर्टी को यूज करके एक एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेस्ट करके एक टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आजकल के जमाने में यही टेस्ट से we what the strength we get in 28 days, 28 डेज की जो कंक्रीट क्यूब की जो स्ट्रेंथ है, इसका मतलब कंक्रीट को 28 दिन के बाद में क्यूरिंग करने के बाद में जो स्ट्रेंथ मिलेगी, वही स्ट्रेंथ यदि हम वो कंक्रीट क्यूब को बॉइलिंग वाटर में रखते हैं, है ना, उबलते हुए पानी में, सिर्फ उसको कास्ट करने के बाद में 24 घंटा या 3 घंटा तो भी कम से कम उसको सेट होने देना है। उसके बाद में मैं बताता हूं आपको बाद में, और उसको यदि 24 आवर्स बॉइलिंग में रखा तो वी विल गेट दी 28 डेज स्ट्रेंथ इन 24 आवर्स, यानी 28 दिन ठंडे पानी से क्यों। अब इसकी जरूरी क्या है भाई, आप बोलेंगे सर इतनी घाई क्या है। तो आज कैसा है इन टूडेज वर्ल्ड, कि हमारे पास में मेथडोलॉजी ऑफ द कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म, हमारे पास में रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांजिट मिक्सर है, और बहुत सारे हमारे पास में फॉर्म वर्क है, सभी है। और हमारे पास में जितने जल्दी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो उतना इकोनॉमिकल भी हमें रहता है। जितने जल्दी का कंक्रीट का वर्क बोलो या बांधकाम हमारा खत्म हो जाता है, तो वी गेट मोर प्रॉफिट, वी गेट मोर टाइम, ऑल्सो वी गेट दैट बिल्डिंग और दैट ब्रिज और दैट मेट्रो टू बी यूज इन अर्लियर टाइम, उसके बेनिफिट जल्दी मिलना चालू होता है। तो लेकिन अभी 28 हमें मालूम है कि कंक्रीट को जो स्ट्रेंथ आती है, ऑलमोस्ट इट्स 95 to 99% ऑफ द स्ट्रेंथ द कंक्रीट गेन्स इन 28 डेज। तो फिर वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ पता करने के लिए, क्योंकि यदि कम स्ट्रेंथ का कंक्रीट आया और हमने उसके ऊपर कंक्रीट कर दिया नेक्स्ट लेयर में, तो फिर आप फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है ना। या ऐसे 2-3 जो रीजन है कि जैसे हमें वी वांट द प्रोग्रेस और द स्पीड ऑफ द कंस्ट्रक्शन फास्ट, आज एक कंक्रीट हो गया, वो 24 आवर में सेट हो गया, वी शुड बी एबल टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंक्रीट, ओके, नेक्स्ट लेयर ऑफ द कंक्रीट यू कैन से। या हमें फॉर्म वर्क निकालना है तो वो भी जल्दी निकाल, वो भी, या स्ट्रेंथ हमें जल्दी पता करना है। बेसिकली इन शॉर्ट दैट वी वांट दैट कंक्रीट स्ट्रेंथ
which the concrete will achieve in 28 days, that in 24 hours, 24 घंटे में। तो इसके लिए जो टेस्ट करते हैं उसको एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेस्ट करके बोलते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेस्ट? बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। इन व्हाट वे? स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी बस धड़ाधड़ कंक्रीट करना ऐसा नहीं है, उसको तो सेट होने ही देना है 24 घंटे। लेकिन 24 घंटे के बाद में यदि हमें ऊपर की नेक्स्ट लेयर चालू करना है, एखादे डैम में, एखादे ब्रिज में, फाउंडेशन में, ओके, आफ्टर 24 hours विदाउट डैमेजिंग द अर्लियर डन कंक्रीट, so as to ascertain the quality of concrete which has been done earlier, उसकी स्ट्रेंथ पता करने के लिए, ताकि हमने ऊपर की लेयर करने के बाद में यदि नीचे की लेयर की स्ट्रेंथ कम आई तो उसको हम कम आई तो नीचे के लेयर को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कंक्रीट यदि ऊपर के लेयर का कर दिया तो नीचे के लेयर का कंक्रीट रिपेयर करना, ये रेमिडियल एक्शन, ये लेट हो सकती है। हमें 28 दिन के पहले यदि कंक्रीटिंग किया हमने नेक्स्ट लेयर का, लेकिन हमें स्ट्रेंथ यदि पता है 28 डेज स्ट्रेंथ इन अर्लियर पीरियड, देन वी कैन डू द रेमिडियल मेजर्स। So for that purpose, the test that has been carried out is called as the accelerated curing strength. Okay. What for this test is used? This test is used to predict the 28 days strength, that is 28 days curing strength, within a few hours of the casting can be done by this test, which is based on the accelerated curing method. And this accelerated curing method is based on that principle that the rate of gain of the concrete is dependent on the temperature of the concrete. If the temperature of the concrete is more, the rate of gain of the strength is more. Okay, so therefore by increasing the temperature of the concrete, we can increase the rate of gain of the strength. यानी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएंगे हम, लेकिन जो स्ट्रेंथ 28 दिन में मिलना है वो हमें 24 घंटे में इससे पता चल सकती है। ठीक है, the strength of the concrete is determined within 7 hours or within 24 hours, you can say. Okay, and if it has been found technically and scientifically कि accelerated curing test से जो हमने स्ट्रेंथ पता किया, जैसे ये यहाँ पे क्रॉस में बताया है, और यदि हमने 28 डेज क्यूरिंग करने के बाद में, रेगुलर क्यूरिंग करने के बाद में स्ट्रेंथ यदि पता किया, जैसे ये लाइन में बताया है, तो दोनों स्ट्रेंथ लगभग सरीकी आती है, आसपास आती है। यानी एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेस्ट से जो स्ट्रेंथ है दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज द स्ट्रेंथ दैट हैज बीन फाउंड आइदर फॉर द 28 डेज क्यूरिंग और फॉर द 7 डेज क्यूरिंग। ठीक है, 7 दिन का क्यूरिंग या 28 दिन के क्यूरिंग करने के बाद में जो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, वही स्ट्रेंथ यदि हमने 24 घंटे का एक्सेलरेटेड क्यूरिंग किया, एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेस्ट से, तो उसमें भी हमें वही स्ट्रेंथ मिलती है। इसलिए इंडियन स्टैंडर्ड हैज अप्रूव्ड दिस एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेस्ट मेथड। कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड है उसके लिए? वो है 9013/1978 which is updated in 2020. ठीक है, Indian standard for the accelerated curing test of the concrete is 9013/1978. Indian standard ने दिया, इसका मतलब क्या है कि वो ये सब अप्रूव कर दिया, उसने मंजूर कर दिया। What does this Indian standard says? It says the method of making, curing and determining compressive strength of the accelerated cured concrete टेस्ट स्पेसिमन्स। स्पेसिमन फिर से यानी कंक्रीट के क्यूब या सिलेंडर। एक सेट में कितने रहते हैं? एक सेट में 3 क्यूब या 3 सिलेंडर रहते हैं। ठीक है, सो नाउ देयर आर 2 एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेस्ट मेथड्स। नाउ वी विल मूव इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस टेस्ट मेथड्स। देयर आर 2 मेथड्स। द फर्स्ट मेथड इज वार्म वाटर मेथड, द सेकंड इज बॉइलिंग वाटर मेथड। आपके ध्यान में आ रहा है? एज यूजुअल यू आर कीपिंग योर नोटबुक एंड द पेन एंड ऑल्सो टूडेज डेट एंड व्हाट वी आर लर्निंग you are noting down in your notebook. So there are 2 methods of the accelerated curing test. One is the warm water method
एंड अनदर इज द बॉइलिंग वाटर मेथड, है ना। एग्जाम में आता है, बोले इसके ऊपर नोट आती है, तो यू शुड बी एबल टू फर्स्ट एक्सप्लेन कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेस्ट मेथड। एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेस्ट क्यों की जाती है? तो मैंने आपको बताया कि जो 28 दिन क्यूरिंग करने के बाद में जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो हमें 24 घंटे में या 7 दिन में 7 घंटे में मिल जाती है। 24 आवर्स तो लगते ही है, और 7 डे स्ट्रेंथ चाहिए तो 7 घंटे में मिल जाएगी, और 28 दिन की स्ट्रेंथ चाहिए तो वो 24 घंटे में मिल जाएगी। और क्यों चाहिए हमें जल्दी स्ट्रेंथ? क्योंकि हमें वी वांट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना। आज कंक्रीट हो गया तो आज के कंक्रीट की क्वालिटी कैसी है, ये कल यदि हमें उसके ऊपर दूसरा कंक्रीट करना है तो वो दूसरा कंक्रीट करने के पहले आज जो कंक्रीटिंग हमने किया उसकी स्ट्रेंथ हमें पता चलना चाहिए, ताकि नेक्स्ट लेयर हम कर सके उसके ऊपर में, ठीक है। तो उसके लिए दो मेथड है, एक है वार्म वाटर मेथड और बॉइलिंग वाटर मेथड। अब हम एक एक मेथड समझ लेते हैं, और दोनों फिर बाद पहले वार्म वाटर मेथड समझते हैं, फिर बॉइलिंग वाटर मेथड। ये एक्सेलरेटेड क्यूरिंग कंक्रीट टेस्ट के लिए एक एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टैंक रहता है, ठीक है। ये हमारे कॉलेज के लेबोरेटरी में जरूर है। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आइदर आस्क टू योर प्रैक्टिकल टीचर टू एक्सप्लेन यू or to give you the practical of the concrete cubes doing accelerated curing, ठीक है। हमारे कॉलेज में के कंक्रीट लैब में ये जरूर है। तो ये दो मेथड है, वार्म वाटर मेथड, बॉइलिंग वाटर। वार्म वाटर मेथड में क्या है? वार्म वाटर मेथड में कंक्रीट का जो पानी का टेम्परेचर जो है, जिस जो वार्म वाटर में हम क्यूरिंग करते हैं, वो टेम्परेचर रखा जाता है 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो पानी को गर्म करने के बाद में उसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। अब क्या करते हैं उसके लिए प्रोसेस, यानी वार्म वाटर क्यूरिंग करने के पहले यदि एक आधे साइड पे हमने क्यूब कास्ट किए, ठीक है, क्यूब कास्ट करने के बाद में अबाउट फ्रॉम 1.5 आवर्स, यानी 1.5 घंटे से लेके तो 3.5 घंटे तक के, from 1.5 hours to 3.5 hours, we will keep that concrete cube with mold, यानी जो मोल्ड है लोहे के मोल्ड उसके साथ में वो कंक्रीट क्यूब, एक सेट में 3 क्यूब, तो उतने क्यूब हम 1.5 घंटे से लेकर 3.5 घंटे तक के 27 डिग्री सेल्सियस में आइदर लेबोरेटरी में या बाहर का तापमान यदि 27 डिग्री होगा तो बाहर में, तो उसको 3.5 घंटे हम सेट होने के लिए रखेंगे। कितना घंटा? 1.5 घंटे से लेके तो 3.5 घंटे तक के वो कंक्रीट क्यूब हमने साइड पे कास्ट किए और उसको हमने 3.5 घंटे के लिए बाजू में रख दिया। कितने क्यूब कास्ट किए एक सेट में? 3 क्यूब। और उसके बाद में वही कंक्रीट के क्यूब उठाए और उसको जो पानी अभी हमने 55 डिग्री सेल्सियस पे लाया है विद द हेल्प ऑफ द हीटर, ओके, उसमें हम 20 घंटा उसको रखेंगे। यानी इन दिस वार्म वाटर वी विल पुट these cubes for 20 आवर्स। फॉर 20 आवर्स 20 घंटा ये गर्म पानी में रखेंगे। पानी का तापमान कितना है? 55 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 56 डिग्री चलेगा, 54 डिग्री भी चलेगा, ठीक है। और 20 घंटे के बाद में ये गर्म पानी में रखने के बाद में उसको पानी के बाहर निकालेंगे, पूरी केयर लेंगे क्योंकि गर्म पानी है। निकालते वक्त जो भी निकालने के हमारे पास में इक्विपमेंट्स हो गए, कुछ हो गए, उससे निकालेंगे उसको। बाहर निकालने के बाद में 1 घंटा उसको कूल करेंगे, ठंडा होने देंगे, है ना, गर्म है वो। क्योंकि वो कंक्रीट के क्योंकि लोहे के मोल्ड में है, अभी भी उसको मोल्ड से हमने बाहर निकाला है क्या? नहीं निकाला है। तो 1 घंटा उसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में वो मोल्ड के नट बोल्ट निकालेंगे और वो क्यूब बाहर निकालेंगे, और क्यूब बाहर निकालने के बाद में उसका कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन में टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 516/1959। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको एक और चीज। कॉम्प्रेसिव टेस्ट में कल अपन ने डिस्कस करते वक्त we have discussed how the compression testing is being done. First we will understand the second method.
First method we have seen that the concrete is casted in a steel concrete cube, in an iron concrete cube mold. Okay. In each set, at least minimum three molds are there. Three cubes are casted. These cubes are placed for about 1.5 hours to 3.5 hours at 27 plus minus 2 degrees. Okay. After casting the cubes, they are placed are either at atmospheric temperature or at the temperature of 27 degrees for 3.5 hours. After they are put in atmosphere for this much period, they are lifted along with the mold, along with the steel mold, into the warm water which is at 55 degrees Celsius for 20 hours. For 20 hours it is put. After 20 hours, those cube molds are lifted from that warm water and they are taken out and put into the cold water, or at in after or pouring the cold water over it for 1 hour. And after 1 hour, means almost 24 hours after the casting, the nut bolts are removed and those concrete cubes are taken out from that mold. Okay. In one set, three molds, three cubes. Now the boiling water method, another method. Now here the cubes are casted as here casted of the fresh concrete, but they are put at 27 degrees plus minus. Hello. Hello. एक्सक्यूज मी, गौरव सुनाई दे रहा है ना? यस सर। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगा किसी ने आपने ही फोन किया क्या। कोई हरकत नहीं, ठीक है। हम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज में है, बॉइलिंग वाटर मेथड। ओके। तो इसमें क्या करते हैं हम, 27 डिग्री टेम्परेचर में क्यूब कास्ट करने के बाद में उसको मोल्ड में ही है, लोहे के मोल्ड में, और उसको वैसे ही हम 23 घंटा ठंडे पानी में रखते हैं। 27 डिग्री ठंडे पानी में, यानी पानी में नहीं डालेंगे क्योंकि कंक्रीट तो गीला है, लेकिन उसको एक तो ऊपर से गीला बोरा रखेंगे, एक आधा कपड़ा रखेंगे, नहीं तो 27 डिग्री सेल्सियस में उसको बाहर में रखेंगे भाई। उसको कूलर लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन द टेम्परेचर इज 27 डिग्रीज, हियर ऑल्सो 20। इसको इसको पानी में नहीं डालेंगे क्योंकि कंक्रीट इज नॉट सेट, ओनली द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड एट 27 डिग्रीज फॉर 23 आवर्स। उसके बाद में वो मोल्ड वैसा के वैसा उठाएंगे, उसको निकालेंगे नहीं क्यूब को बाहर, क्योंकि अभी भी सेट होने का है, और उसको उबलते हुए पानी में, कितना पानी का टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो उबलते हुए पानी में उसको हम डालेंगे और उसको 3.5 घंटा फॉर 3.5 hours वी विल पुट these concrete cube molds, means concrete cubes along with the molds at 100 degrees Celsius boiling water for 3.5 hours। 3.5 घंटा इसको बॉइलिंग वाटर में रखेंगे, और इतना समय होने के बाद में, 3.5 घंटा होने के बाद में, फिर हम इसको बाहर निकालेंगे, या फिर क्या करेंगे, जो हमारा, जैसे मैंने बताया कि हमारे कॉलेज में वो एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टैंक है, उसका टेम्परेचर, उसका हीटर बंद कर देंगे, तो नेचुरली वो कूल होते जाएगा। और फिर उसके बाद में 23 घंटा के और 3.5 घंटे के बाद में उसको बॉइलिंग करने के बाद में उसको 2 घंटा ठंडे पानी में रखेंगे, या ऊपर से उसके ऊपर में कोल्ड वेट क्लॉथ उसके ऊपर रखेंगे, है ना। हैंडलिंग गर्म रहेगा तो वो हैंडल करने को तकलीफ होगी, क्योंकि बॉइलिंग वाटर में से इधर निकाला है या वार्म वाटर में से इधर निकाला है, तो 2 घंटा उसको कूलिंग करेंगे, उसको कूल होने देंगे। 2 घंटे के बाद में इसको हम नट बोल्ट से उसके क्यूब निकालेंगे बाहर, और उसको कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करेंगे। ठीक है। कल हमने देखा कि कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन में क्यूब को टेस्ट कैसे करते हैं। ये ऐसे ऐसे कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन रहती है। ये कॉम्प्रेशन टेस्टिंग में yesterday we have seen
that in this way this is the compression testing machine, and here the cubes are placed. Okay, either these cubes are placed after 28 degrees 28 days of the curing, or as at now we have seen, for after accelerated curing, that is after the 24 hours, either 3.5 hours of the boiling water, or 23 hours of the warm water at 55 degrees, or 3.5 hours of the curing at 100 डिग्री सेल्सियस. अब कंक्रीट को मोल्ड में से निकालने के बाद में, जैसे ये इसके जो कंक्रीट को के जो दो दो सरफेस रहते हैं, फिर टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस. ठीक है, कंक्रीट का टॉप सरफेस रहेगा जिसके ऊपर कंक्रीट का कोई फॉर्म मोल्ड आएगा नहीं, और बॉटम सरफेस में प्लेट रहेगी. ठीक है, तो कंक्रीट को जब हम टेस्ट करेंगे, व्हेन वी टेस्ट द कंक्रीट बाय अप्लाइंग द कंप्रेशन लोड, है ना, हमने कल देखा था that compression load application rate of the application of that compression load is 104 kilograms. We have seen 140 kilograms per square centimeter per minute. ये इसको जब ये हम अप्लाई करते हैं, तो ये क्यूब के जो टॉप और बॉटम सरफेस जो है उसके वो छोड़ के बाकी कोई भी सरफेस लेके हम वो ऊपर और नीचे रखेंगे. यानी कास्ट करते वक्त जो ओपन सरफेस था ऊपर का और प्लेट का नीचे का जो सरफेस था, उसको रखते हुए हम क्यूब को टेस्ट नहीं करेंगे. क्यूब को टेस्ट करते वक्त कंप्रेशन में वो सरफेस छोड़ के बाकी जो भी सरफेस है उसको हम क्रशिंग करते वक्त ऊपर में और नीचे में रखेंगे. मुझे लग रहा है कि आपके ध्यान में आ गया है. जब हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में ये क्यूब को रखते हैं, तब उसको कास्ट करते वक्त, व्हेन वी कास्ट द क्यूब, तब जब उसका ऊपर का और नीचे का जो सरफेस रहता है, ऊपर का सरफेस तो ओपन रहता है और नीचे के सरफेस में प्लेट रहती है, तो वो सरफेस छोड़ के क्यूब कास्ट टेस्ट करते वक्त वी विल टेस्ट द क्यूब बाय टेकिंग द सरफेसेस which are other than the original open, the top surface and the bottom surface. ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज मैंने बताने की रह गई थी, है ना. ये जब हम टेस्ट, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन के लिए वो क्यूब के ऊपर में लिखते हैं. जैसे यहाँ लिखा है कि एम कंक्रीट ग्रेड कुछ तो भी M5 या M15 कुछ तो भी दिख रहा है, और डेट ऑफ द कास्टिंग, तो ये टॉप सरफेस होगा. तो ये टॉप सरफेस कभी भी टेस्ट करते वक्त ऊपर में नहीं आएगा. इसको छोड़ के बाकी जो भी सरफेस है, यानी टॉप और बॉटम का सरफेस छोड़ के बाकी सरफेस जो वो टेस्टिंग करते वक्त हम वो जो दो जॉज रहते हैं प्लेट, वो प्लेट में वो रखते हैं. ठीक है, this thing I wanted to tell you. So we have seen the accelerated curing. Now we are moving, friends, into our last 10 or 15 minutes are there. We'll be discussing on the next strength test, that is the flexural tensile strength. Okay, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ पता करने के लिए एक टेस्ट हम करते हैं जिसे जिसे बोलते हैं फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ द कंक्रीट. बिकॉज डायरेक्ट टेंशन स्ट्रेंथ टेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. So we find the indirect, by way of the indirect test, by applying the load to the concrete beam, and we make that concrete beam to bend, and the failure of that concrete beam at this bending or the flexure is found out in terms of the tensile strength. Okay, so this is the indirect test of the concrete flexural strength. For finding the flexural strength, that flexural strength is also called as the modulus of rupture. The flexural tensile strength at failure, the another name for this flexural tensile strength is also called as modulus of rupture. Okay, please note down in your notebook. The flexural tensile strength of the concrete, another name for that is modulus of rupture. Okay, to find out this flexural strength, we don't use the concrete cube or the concrete cylinder.
ऑन द कॉन्ट्ररी वी यूज द कॉन्क्रीट बीम्स। ये जैसे यहाँ पे बताया गया है, इस टाइप के कॉन्क्रीट बीम हम कास्ट करते हैं। काय के लिए? तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ निकालने के लिए। और वो कौन से साइज के रहते हैं? वो कंक्रीट बीम का साइज रहता है 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, यानी इसकी एक साइड रहती है 15 सेंटीमीटर लेंथ और द विड्थ, 15 सेंटीमीटर्स इज इट्स ब्रेड्थ and its length is 70 centimeters. Okay, for the 40 aggregate we use the concrete specimen. The size of the specimen is 15 centimeter by 15 centimeter by 70 centimeter. And for the smaller size of the aggregate, maximum size of the aggregate less than 20 we use the specimen, यानी ऐसी ही बीम यूज करते हैं, सिर्फ उसके जो साइड के जो विड्थ और डेप्थ जो रहती है वो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ रहती है। ठीक है। फॉर फाइंडिंग द फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ we use two types of the specimens. We use two types of the concrete molds, you can say. They are 15 centimeter by 15 centimeter by 70 or by 10 centimeter by 10 centimeter by 50 centimeter. We already know, as per Indian standard IS 456, the flexural strength of the concrete is equal to 0.7 times the characteristic compressive strength. Okay, I will again repeat the characteristic compressive strength. You all are known, aware about the characteristic compressive strength. That is the compressive strength of the concrete cube mold of 15 centimeter by 15 centimeter by 15 centimeter after 28 days of the curing. Okay. As for the concrete cubes, here also we cast one set of this specimen. Okay, one set means three specimens of 15 centimeter by 15 by 70 or three specimens of 10 centimeter by 10 centimeter by 50. Why three specimens? So that after finding the average of the three we will get the exact result. Therefore we use the three specimens. I will again repeat, friends. One set contains three specimens. That set may be for the compressive strength, wherein we use the cubes or the cylinder. That set may be for the flexural strength, where we are using the beams. The specimen size is 15 by 15 by 70 or 10 by 10 by 50. Or next we will be learning about the split tensile strength test. इसके बाद में हम समझने वाले हैं split tensile. Both this flexural strength as well as the split tensile strength are the indirect test for finding the tensile strength of the concrete. ठीक है। इसके लिए जो जो मेथड है, दो मेथड है for the flexural strength. You must be noting down in your notebook. The two methods are there. थर्ड पॉइंट लोडिंग मेथड, या इसको टू पॉइंट लोडिंग मेथड भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट लोडिंग मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टू पॉइंट लोडिंग मेथड। यानी ऐसा जो बीम है, जो अभी हमने साइज देखा 15 बाय 15 बाय 70, जिसकी लेंथ 70 है और साइड्स जो रेक्टा है, जो स्क्वायर है, वो है 15 बाय 15 और मे बी द साइज मे बी 10 बाय 10 बाय 50 सेंटीमीटर्स। ओके, सो इसको जो लोड अप्लाई करते हैं फेल्यूर लोड जानने के लिए, तोड़ने के लिए, क्रैक करने के लिए, तो वो लोड दो प्रकार से अप्लाई करते हैं। पहला है टू पॉइंट मेथड, या इसको थर्ड पॉइंट लोडिंग मेथड भी बोलते हैं, या वन पॉइंट मेथड, इसको सेंटर पॉइंट लीड लोडिंग मेथड बोलते हैं। दो प्रकार से वी फाइंड आउट द लोड एट द फेल्यूर। ओके, these are the dimensions of this. The distance between the two supports of this concrete beam or specimen is, if it is equal to 3 times its this d, this is divided into 3 equal parts, d which is equal to 3 times the d, this center to center distance. Here also in the in one point method or center point, it is divided into equal two parts. It is equally divided into 3 parts.
This the distance between the two is divided into three equal parts. Here it is equally divided into two parts. Okay, the load is applied without shock and increased continuously at a rate such that extreme fiber stress increases at approximately zero point 0.7 kilograms per square centimeter per minute. That is, the application of the loading is 400 kilograms per minute. वहां पे हमने पिछली बार क्या देखा था कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन में 140 kilograms per minute per square centimeter. Here it is 400 kilograms per minute is the application of the load for 15 centimeter specimen. 15 by 15 by 15 70 का स्पेसिमन है तो लोड एप्लीकेशन 400 kilograms पर मिनट. और यदि 10 सेंटीमीटर साइज का स्पेसिमन है तो एप्लीकेशन ऑफ लोड इज 180 kilograms पर मिनट. द लोड इज इंक्रीज, धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे हम ये रेट से अंटिल द स्पेसिमन फेल्स, यानी ये स्पेसिमन में कहीं तो भी क्रैक आएगी, दरार आएगी, तब तक हम ये लोड अप्लाई करेंगे. एंड द मैक्सिमम लोड अप्लाइड to the specimen during this test, that is till its failure is recorded. It is there again, the compression testing machine, the same equipment is being used. On that meter we get the load at the failure either in newton or in kilograms. वो लोड हमें मिलता है. वो लोड को यदि हमने कैसे अभी उस लोड के ऊपर से फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ या मॉड्यूलस ऑफ रप्चर कैसे निकालना, यह अभी हम आगे में समझ लेंगे. अब ये लोड आने के बाद में क्या होगा, कहीं तो भी बीच में कहीं तो भी क्रैक आएगी, है ना. इसको ऐसी क्रैक आएगी बीच में कहीं तो भी, समवेयर देयर विल बी क्रैक. ओके, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दैट क्रैक. लिसन वेरी केयरफुली. फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दैट क्रैक फ्रॉम द नियरेस्ट सपोर्ट. वहां जहां भी क्रैक आएगी वो क्रैक का डिस्टेंस, उसके नजीक का जो सपोर्ट है वो डिस्टेंस, वो सपोर्ट से वो डिस्टेंस आप नाप लीजिए. यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दैट सपोर्ट विच इज वेरी नियरर फ्रॉम द क्रैक. ठीक है, दैट डिस्टेंस यदि उसको हम स्मॉल ए बोलते हैं, उसको यदि हम सिंबल एक देते हैं स्मॉल ए. व्हाट इज स्मॉल ए? स्मॉल, ये जैसे है यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ऐसा लोड अप्लाई करने के बाद में, ये कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन ही है. ये कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन में ऐसी अरेंजमेंट रहती है. हमने देखा कि ये डबल पॉइंट लोडिंग है. ये यहाँ पे दिख रहा है आपको डबल पॉइंट लोडिंग, दैट इज द थर्ड पॉइंट लोडिंग और 2 point लोडिंग. सो हियर द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू is equal to, if it is equal to L, then this is equal to L by 3. This between the two is equal to L by 3 and the last is L by 3 and is equally divided into 3 parts. This size is equal to 15 by 15 by 70 और मे बी 10 by 10 by 50. ठीक है, ये क्रैक जो आती है तो ये क्रैक का नियरेस्ट सपोर्ट से डिस्टेंस हमें गिनना है. ठीक है, दैट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए. I think you have understood. Apply the load. The load is applied either at 400 kilograms per minute for 15 centimeter specimen or 180 kilogram per minute for the 10 centimeter specimen till the crack appears, till this fails. We have found out the distance of this crack from the nearest support. Nearest support जो है उसको हमने distance पता कर लिया. ये देखिए आप यहाँ से आपको 2 point लोडिंग और वहां के सपोर्ट, ये जैसे क्रैक आई, ये ऑल दिस यू कैन सी थ्रू दिस फोटोग्राफ्स. ठीक है, सो वी हैव फाउंड आउट नाउ द flexural strength of the specimen shall be expressed as modulus of rupture FB by the formula. That formula, if A, that is the distance between the line of fracture and nearest support, A, measured on the center line of the tensile side of the specimen in centimeter, यदि A गिना, shall be calculated to the nearest point. If A is we have measured, then for the flexure strength shall be expressed in if A equals the distance between the line of the fracture and the nearest support measured on the center line of the tensile side of the specimen,
then the flexural strength FB is equal to P into L डिवाइडेड बाय BD स्क्वायर, ये फॉर्मूले से मिलता है। कब क्या ये कंडीशन क्या है इसके लिए, ए जो है ए इज ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर, यानी ये जो फ्रैक्चर है नियरेस्ट सपोर्ट से वो यदि 20 सेंटीमीटर से यदि ज्यादा है डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर के स्पेसिमन के लिए, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि द फ्लेक्चरल बेंडिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय PL by BD square when A is greater than 20 centimeter for 15 centimeter specimen and is greater than 13.3 for 10 centimeter specimen. ठीक है, B is the width that is 15 centimeter or 10 centimeter. D is the measured depth in centimeter of the specimen at the point of failure. D is the measured depth जो है, जो B यानी 15 बाय 15 का है तो 15 बाय 15, D भी 15 ही रहेगी, 10 बाय 10 का है तो 10 रहेगी। L is the length, 15 बाय 15 का है तो लेंथ रहेगी 70, 10 बाय 10 का है तो लेंथ रहेगी 50, और P है मैक्सिमम लोड इन किलोग्राम एट फेल्यूर। फेल्यूर में जो भी लोड आएगा आइदर इन किलोग्राम और मे बी इन न्यूटन, ये यदि पुट हमने किया तो हमें मिलेगी कॉम्प्रेसिव द फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ व्हेन द वैल्यू ऑफ A is greater than 20. If the value of A is less than 20 centimeters, that is the distance of the crack or the fracture from the nearest support is less than 20 centimeter but greater than 17 centimeter for 15 centimeter specimen, or less than 13.3 centimeter and greater than 11 centimeter for 10 centimeter specimen, तब ये फॉर्मूला यूज करना है। The flexural strength is equal to 3 times P into A divided by BD square. B measured width, D is measured depth, यानी ये 10 by 10 या 15 by 15, B is equal to 15, D is equal to 15, B is equal to 10, D is equal to 10, L is equal to either 70 or 50, and P is the maximum load in applied in kg applied to the specimen at failure when the A is less than 20 or greater than 17. Okay, if A is less than 17 and 15 centimeter for 15 or less than 11 for the 10 सेंटीमीटर स्पेसिमन, यानी कहीं तो भी क्या आपके कास्टिंग में हुआ कहीं तो भी गलती हो गई है तो फिर से एक बार आपको इसको टेस्ट करना है। द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट आर नीडेड टू बी डिस्कार्डेड। ओके, प्रिकॉशंस क्या लेना है, द स्पेसिमन शैल बी प्लेस्ड इन द मशीन in such a manner that load shall be applied to the uppermost surface as cast in the mold. सबसे ऊपर के लोड सरफेस के ऊपर में ही लोड आना चाहिए मोल्ड में। जैसे मैंने बताया कि कास्ट करते वक्त एक सरफेस ओपन रहेगा तो वो ओपन सरफेस को नहीं लेना है, जो बाकी के 3 सरफेस है उसको ऊपर में लेना है लोड अप्लाई करते वक्त। The axis of the specimen shall be carefully aligned with the axis of the loading device. स्पेसिमन का एक्सिस पैरेलल रहना चाहिए लोडिंग डिवाइस के। लोड शैल बी अप्लाइड विदाउट शॉक एंड इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली विथ ए रेट सच दैट फाइबर स्ट्रेस जो मैंने अभी बताया 7 kg per cm square per minute, यानी लोडिंग जो है 400 kg per minute फॉर 15 सेंटीमीटर, 180 kg per minute फॉर द 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हियर वी विल टेक द ब्रेक। नेक्स्ट टाइम we will study how to find out the tensile strength. Okay, so don't leave the class.